Okay. Am I audible now, Sanjana? Yes, ma'am. Okay, beta. Okay. So we have Sanjana, Ojas, और आंचल एंड कोमल. सो संजना एंड आंचल लास्ट टाइम भी हमने क्लास लगाई थी. ओजस एंड कोमल, बेटा कैन यू टेल मी आप कहाँ से हैं? ओजस कौन से स्कूल से है बेटा? I'm from Amrita Vidyalayam, विच सिटी? Delhi. दिल्ली. ओके बेटा. एंड कोमल कैन यू टेल मी? ओके. सो okay, Ojas, can you tell me already you have done with this chapter of polynomials or not? No, not now. Not until now. Okay, beta. So what? But you have already, you are in class 10 and classes are going on. Classes has like already started, right? Yes, they have started. We have just done the first chapter. Okay, beta. ठीक है. Okay. So let us continue with polynomials. So because we already had one class on polynomials, so I'll quickly revise what we had done in the last class and then we'll continue. Okay, beta? Yeah. Okay, is the screen visible to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Okay, ma'am. beta. Okay. So what is a polynomial? किसी को पता है बेटा what is a polynomial? संजना आप बताइए बेटा. लास्ट क्लास में we have already done that thing. Polynomial किसी को पता है बेटा? It is an algebraic expression with more than 3 terms. Okay. Yeah, but this more than 3 terms is not a condition. It can have only one term also. That also we call a polynomial. I will tell you what is a polynomial. So polynomial is something like this. Suppose you have a term, an expression of this form: a naught plus a1x plus a2x square plus so on an x raised to power n. Here these ai's, a naught, a1, a2 and an, they are your real numbers. Okay, real numbers, everybody know what is a real number? So these are the numbers जो आपके number line पे होते हैं. a naught, a1, a2, an are real numbers. Okay, students, and this x is called a variable. X is called a variable. It can take any value. So this is a polynomial. So polynomial is of this form. This is an expression जिसमें we have some constants and we have a variable and we have power of the variable. देखिए a naught के साथ, with a naught you have x raised to power 0, with a1 you have x raised to power 1, and with a2 you have x raised to power 2 and so on, and with an you have x raised to power n. So powers should be 1, 0, 1, 2, 3. So the powers cannot be negative. If you have something like this 5 plus x, so this is a polynomial, right? Because we have a naught is 5 here, a1 is 1 here. And if we look at this 5 plus x raised to power minus 1, this is not a polynomial. Why? Because the condition for polynomial is the powers should be integer. Power should be positive integer. So the power of the variable should be either 1 or 2 or 3 and so on. It cannot be negative. It cannot be fraction. For example, if I write like this, 5 plus square root of x. So this is 5 plus x raised to power half. This is again not a polynomial. This is again not a polynomial. Okay, so कुछ students ने अभी join किया है. So what is a polynomial? Polynomial is an expression of this form: a naught plus a1x plus a2 x square plus an x raised to power n. यहाँ पे x की जो powers हैं वो positive integer होना चाहिए. मतलब 1, 2, 3, 4. It cannot be negative. ये -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता. It cannot be a fraction. मतलब 0.5 नहीं हो सकता, 0.3 नहीं हो सकता. Is that thing clear? Polynomial की definition सबको clear है बेटा? Yes? Yes, ma'am. Okay. किसी को doubt है तो please ask. अगर किसी को doubt है you can ask me. इसमें
दिस n जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर of x is called degree of the polynomial. So whatever is the highest power of x, that is called the degree of the polynomial. Fine beta. So now can you tell me what is the degree of this polynomial 5 plus 3x plus 2x square? What is its degree? Quickly everybody answer. 2. 2. Yes, right. Now this is a polynomial px, we write like this. Okay, now I have another polynomial py. The variable can be anything. It can be x also, you can write y also, you can write z also. Doesn't make any difference. So if I have a polynomial, yes Akhil, any doubt beta? You have raised your hand Akhil. If you have any doubt, please ask beta. Okay, so can you tell me यहाँ पे what is the degree of this polynomial? 0. 0. Yes, because this is x, this is nothing, this is a naught. This is like this. You have a naught, that's it. So here x raised to power 0 is there. So degree of this polynomial is 0. So Ojas, you get it beta? आपने बोला था 3 से ज्यादा expression होने चाहिए, terms होनी चाहिए. तो जरूरी नहीं है. You can have even one term. Am I clear on that, Ojas? Yes, ma'am. Okay, so if I have a polynomial like this, p of x is equal to -1, this is also a polynomial. This is a constant polynomial. We call it as a constant polynomial. So iski degree kitni hai beta? 0. So what is the degree of this polynomial? 2 plus 2 by x. Iski degree बताइए beta. कौन बताएगा? Arjun? -1. Okay, so this is not a polynomial, right? ये polynomial ही नहीं Yes. है. Not a polynomial. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की power -1 है. So we don't talk of degree when it is not a polynomial. Fine बेटा, सबको clear है? So polynomial की definition degree क्या होती है? उसके बाद if degree is 1, तो polynomial कैसा दिखेगा? a0 plus a1x. इसको हम बोलते हैं linear polynomial. इसको क्या बोलते हैं? Linear polynomial. If degree is 2, तो polynomial कैसा दिखेगा बेटा आपका? a0 plus a1x plus a2x square. इसको क्या बोलते हैं? quadratic polynomial. क्या बोलते हैं? Quadratic polynomial. ओके बेटा, क्वाड्रेटिक जो वर्ड है, लीनियर तो मतलब 1, ठीक है, पावर 1, तो इसलिए लीनियर बोलते हैं. क्वाड्रेटिक जो टर्म है दैट कम्स फ्रॉम क्वाड्रेट. क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर. स्क्वायर की दो साइड्स, मतलब 2D फिगर है ना स्क्वायर, तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं बेटा. और अगर डिग्री 3 होगी तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो यू हैव a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube. Anchal is here. Anchal, बेटा समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, सो ये चीजें Yes, हमने ma'am. लास्ट क्लास में भी की थी, इसको क्विकली रिवाइज कर रहे हैं. ओके, किसी को डाउट यहाँ पे? Okay, ma'am. 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. एनीबडी हैविंग एनी डाउट? क्यूबिक मतलब 3 डायमेंशनल फिगर हो गया, इसलिए जब डिग्री 3 होगी तो उसको क्यूबिक बोलेंगे. फाइन बेटा. अब देखिए नेक्स्ट चीज जो है, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, राइट, सो सपोज यू आर गिवन अ पॉलिनोमियल px. आई वांट टू नो, इसमें आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं बेटा. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है x प्लस एक्स स्क्वायर, मैं इसमें 1 भी पुट कर सकती हूँ. 1 प्लस 1 2 आ गया. इसमें मैं -1 भी पुट कर सकती हूँ, वो क्या आ गया? -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसमें मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ. 0.5 भी पुट कर सकती हूँ. 0.5 प्लस 0.5 का स्क्वायर, दैट इज 0.5 प्लस 0.25, दैट इज 0.75 एंड सो ऑन. सो यू कैन पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x. Now I want to know what value of x makes my polynomial 0. ठीक है बेटा. सो जिस वैल्यू के लिए आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाए, मतलब px जो है वो 0 हो जाए, x की क्या वैल्यू पुट करें कि px 0 हो जाए, that value is called, that value for which the polynomial becomes 0 is called 0 of the polynomial, is called 0 of the
पॉलिनोमियल। समझ में आया बेटा? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, इसमें मैं x को क्या पुट करूं कि ये 0 बन जाए? इसमें मैं x को क्या पुट करूं कि ये 0 बन जाए? -3/2। यस बेटा। सो अगर आप x को -3/2 पुट करेंगे तो इट इज 0. सो x इज इक्वल टू -3/2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा? अब देखो यहाँ पे x² -5x प्लस 6 ये मेरा पॉलिनोमियल है। इसमें मैं x को क्या पुट करूं कि ये 0 बन जाए? आप 2 पुट करके देखिए बेटा। x2 पुट करोगे तो 2² -5 × 2 + 6 वो क्या आ जाएगा? 4 - 10 + 6 that is 10 - 10 that is 0. So x is equal to 2 is a 0. इसमें 3 पुट करके देखिए बेटा। 3 करोगे तो 3² -5 × 3 + 6 that is 9 - 15 + 6 that is 15 - 15 that is also 0. So x is equal to 3 is also a 0. समझ में आया बेटा? अब इसमें x is equal to 0 पुट करके देखिए। x is equal to 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा? ये 0² -5 × 0 + 6 this is equal to 6. So this is not 0. So x is equal to 0 is not a 0 of this polynomial, is not a 0 of this polynomial. समझ में आया बेटा? ये 2 और 3 कैसे पता चले वो मैं बाद में बताऊंगी, बट अभी हम डेफिनेशन कर रहे हैं कि व्हाट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट वैल्यू ऑफ x जो आपके पॉलिनोमियल को 0 बनाती है उसको बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? क्लियर है बेटा कि व्हाट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल? ओके, क्विकली टेल मी व्हाट इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका 0 क्या है? Everybody unmute and tell me what is the 0 of this polynomial. Akhil, 1. yes, +1, yes. X is equal to 1 पुट करोगे तो ये polynomial 0 बनता है। Now tell me this polynomial x² - 2x + 1 इसमें क्या पुट करूं कि ये 0 बन जाए? ढूंढो। 1 1, yes. और कुछ? इसमें क्या पुट करूं बेटा? x² - 4 what is the 0 of this polynomial? 2 2 है। और कुछ है? और भी कुछ पुट करके 0 बन सकता है? -2. यस, ठीक है। यू कैन पुट 2 ऑल्सो, यू कैन पुट -2 ऑल्सो। ठीक है बेटा? अब देखिए ये तो हमें मैथमेटिकली डेफिनेशन पता चल गई 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ग्राफिकली what is the meaning of 0 of a polynomial? What is the meaning of 0 of a polynomial? कोई बता सकते हैं? ग्राफिकली इसका क्या मतलब है? Where the graph cuts the x-axis यस बेटा। or the variable axis. यस, यू हैव टू xy जिसमें आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है बेटा? अगर मैं आपको दे दूं कि इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए x + 2 तो आप कैसे प्लॉट करते हो? कुछ वैल्यूज ले लेते हो। फॉर एग्जांपल x is equal to 1 पे ये हमारा y हो गया। y की वैल्यू कितनी होगी? 3। x is equal to 2 पे y की वैल्यू कितनी होगी? 4। 2 पॉइंट्स ले लो 1 3। सो आई हैव 1 हियर, सपोज 1 2 3, 3 हियर एंड देन आई हैव 2 here and 4. Okay, so this is something like this. Fine beta. So this is the graph of y is equal to px. Px is your x plus 2. Now you see where this graph is intersecting x-axis here, and this point is x is equal to -2. So geometrically 0 of a polynomial means where when you draw the graph of that polynomial, where on x-axis you will intersect, where the graph will intersect on x-axis, that is the 0 of the polynomial. ठीक है बेटा?
अब आपको ये देखो, ये तो लीनियर लाइन थी, इसको प्लॉट करना इजी है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। एनीबडी नोज अबाउट डेस्मोस? आंचल और संजना को पता है? किसी और को पता है व्हाट इज डेस्मोस? यस बेटा। माई अनदर स्क्रीन इज विजिबल? दूसरी स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस। अखिल बता सकते हैं, स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको दूसरी? गूगल क्रोम खुला हुआ है, ग्राफिंग कैलकुलेटर। संजना, आंचल? No, ma'am. No, okay. No, ma'am. I'll share No, another. ma'am. No. Okay, I'll share another screen. देखो बेटा, इसमें this is now. Can you see? Can you Yes, see? ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So गूगल पे आप टाइप करोगे बेटा डेस्मोस ग्राफिंग, क्योंकि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। सो आप ये खुल जाएगा आपका ग्राफिंग कैलकुलेटर, राइट? सो जस्ट ओपन इट, सो यू विल गेट इट बेटा। सो जैसे अभी मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लॉट किया था, फटाफट प्लॉट हो गया। कैन यू सी हियर? -2, 0 is the point where the graph is intersecting x-axis. Clear बेटा? Now let us see कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे सबको दिख रहा है x² माइनस 5x प्लस 6। कैन यू सी बेटा ग्राफ? रेड कलर में ग्राफ दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए बेटा 2,0 और 3,0 दो हमें पॉइंट्स मिले। क्वाड्रेटिक के केस में, लीनियर के केस में ग्राफ एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्वाड्रेटिक के केस में 2 बार कट सकता है, जरूरी नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² माइनस 5x प्लस 6, इसने कितनी बार इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को? 2 बार। किस किस पॉइंट पे? x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू 3 पे। और आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? x² माइनस 5x प्लस 6। व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 2 यू कैन सी कि 0 बन रहा है। x इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हो तो देन ऑल्सो यू कैन सी 0 बन रहा है। अब मेरे पास दूसरा ग्राफ है, दैट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, -4x प्लस 4। ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को? बताइए बेटा। एक बार, है ना? सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो हो सकता है एक ही बार टच करे। जहां इस पे देखिए x² माइनस 4x प्लस 4 सिर्फ x इज इक्वल टू 2 पे टच कर रहा है, और कई बार हो सकता है टच ही ना करे, जैसे x² प्लस 3x प्लस 3। कैन यू सी बेटा? दिस इज नॉट टचिंग द ग्राफ एट ऑल, टचिंग द एक्स एक्सिस एट ऑल। ये पॉइंट सबको क्लियर है? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए बेटा। Yes, ma'am. Okay, so I'll go to the writing screen again. So what we say कि अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, if you have a linear polynomial, तो वो पक्का एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। So it has 1 0, एक ही बार ही एक्स एक्सिस को कट करेगा और पक्का करेगा। So if you have ax plus b equal to 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी अपॉन ए। और इफ यू हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसा है? ax² प्लस bx प्लस c। इसको भी आप ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हो हाथ से, बहुत सारे पॉइंट्स ले लो फिर कर्व बना लो। बट इस केस में आपके पास या तो इधर नो 0, मतलब कोई भी पॉइंट इसको 0 नहीं बनाएगा, इधर 1 0 और 1 0 और 2 zeros। ठीक है? इसका एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। नो 0 का एग्जांपल है x² प्लस 3x प्लस 3। अभी मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया था, द ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता। ठीक है बेटा? 1 0 मैंने अभी ग्राफ प्लॉट किया था, x² माइनस 4x प्लस 4, क्योंकि ये क्या है? दिस इज x माइनस 2 का स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक बार बस ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, ओनली 1 टाइम्स। ओके, इधर 2 zeros। इसका एग्जाम्पल क्या है? x² माइनस 5x प्लस 6। ये कैसा है? इसके फैक्टर बनाने आते हैं बेटा सबको? फैक्टर कैसे बनाते हैं? आपने सेंटर वाली टर्म को तोड़ना है, सो दैट द प्रोडक्ट इज 6 एंड द सम इज -5।
सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. तो इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं? -2 कॉमन x माइनस 3. ये फैक्टराइजेशन ऑलरेडी यू नो राइट बेटा. सो दिस इज x माइनस 2 x माइनस 3. फाइन स्टूडेंट्स. सो आपका ग्राफ कैसे दिखता है? ऐसा. ठीक है. तो नाउ ये हमने कंक्लूड करना है कि क्वाड्रेटिक के केस में या तो आपकी एक जीरो है आएगी या दो जीरो आएंगी या कोई भी जीरो नहीं आएगी. इज दिस थिंग क्लियर बेटा? यस स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. ओके. सो कैन यू टेल मी क्यूबिक के केस में क्या होना चाहिए बेटा? हाँ जी, क्यूबिक के केस में क्या होना चाहिए बेटा? इसमें भी आपके पास वही है. इसमें या तो आपकी नो जीरो या फिर 1 0 या फिर 2 zeros या फिर 3 zeros. मतलब या तो ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा या फिर ये एक बार करेगा या दो बार करेगा या तीन बार. मतलब अगर क्वाड्रेटिक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है तो मैक्सिमम 2 zeros हो सकती हैं. क्यूबिक जो है उसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? 3. Here the degree of the polynomial is 3. So maximum कितनी zeros हो सकती है बेटा? 3. बट जरूरी नहीं है कि 3 हो ही हो. ठीक है. So I will give you example. अब आप देखिए, सबसे पहले y is equal to x क्यूब. इसकी कितनी जीरोस है बेटा बताइए? बताइए. ये कितनी बार जीरो बनेगा? किस वैल्यू ऑफ x के लिए ये जीरो बनेगा बेटा? Can anybody tell me what value of x will make this x cube 0? 0. हाँ जी बेटा. तो आपने करना क्या? बस x क्यूब को 0 पुट कर दो तो यहां से x की वैल्यू ले लो. सो इट हैज ओनली 1 0. इट हैज ओनली 1 0. और अब मुझे बताइए इसका y इज इक्वल टू और किसी वैल्यू के लिए 0 बनेगा? नहीं बनेगा ना. कुछ भी पुट कर लो x की वैल्यू, ये 0 कभी नहीं बनेगा 0 के अलावा. अब ये वाला देखिए बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. ये देखिए किस वैल्यू के लिए 0 बनेगा? फटाफट बताइए मुझे. टेल मी क्विकली बेटा, किस किस वैल्यू के लिए ये 0 बनेगा? 1 के लिए बनना है. चेक करो 0. सब लोग. एवरीबडी चेक वेदर इट इज बिकमिंग 0 फॉर 1. बन रहा है ना बेटा? ओके. और किसी वैल्यू के लिए बनना है बेटा? 0 के लिए. फाइन. सो दिस इज, अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे, ये 0 बन जाएगा. तो इसकी कितनी जीरोस है? 2 zeros. इसको निकाला कैसे बेटा मैंने? इसको देखो, आपने इसको 0 बनाना है तो यहां से x स्क्वायर कॉमन, अंदर x माइनस 1 आ गया. तो आपका आंसर क्या आ गया? या तो x 0 बनेगा या x 1 बनेगा. ये चीज पता है बेटा आपको? ये चीज जो मैं लिख रही हूँ, डू यू नो दिस थिंग? मैंने पहले फैक्टर बनाए, फिर हर फैक्टर को 0 कर दिया. एक बार इसको 0 करोगे मतलब x 0, इसको 0 मतलब करोगे मतलब x 1. इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी बेटा? yes. Yes, ma'am. Another polynomial I am giving you. This is x cube minus 6x square plus 11x minus 6. इसको गैस कीजिए किस वैल्यू पे 0 बन रहा है ये? बता सकते हैं बेटा? गैस करना है आपको, रूल नहीं पता है. गैस करो. 1 पे 0 बन रहा है, चेक करो. 1 पे ये क्या बनेगा? 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6. हाउ मच इज दैट? 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6. सो दिस इज 12 माइनस 12. 0 बना बेटा? यस. x इज इक्वल टू 2 Yes, पे ma'am. चेक करो. 2 पे चेक करना जरा. दैट विल बी 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6. सो क्या बन रहा है ये? 8 minus 24 plus 22 minus 6. How much is that? 30 minus 30. 0 बन रहा है ना बेटा?
x इज इक्वल टू 3 पे चेक कीजिए। Yes, ma'am. 3 पे भी चेक करो। 3 पे क्या बनेगा? 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। हाउ मच इज दैट? 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6, दैट इज 60 माइनस 60। ये भी जीरो बन रहा है। तो इसके आपको कितने जीरो बने? 3 जीरोस मिले। इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ओके बेटा। और ये वाला जो मैं केस कह रही हूँ ना कि नो जीरो वाला केस क्यूबिक के केस में नहीं आता। इट विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट 1 जीरो। इसका या तो 1 जीरो होगा या 2 जीरोस होंगे या 3 जीरोस होंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये वाला केस क्यों नहीं आता। सो लेट मी समराइज कि हमने अभी क्या किया। सबको क्लियर है? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। अर्जुन, गगन चौधरी, कैन यू टेल मी बेटा, आपको क्लियर है? लीनियर Yes, ma'am. पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है? इनकी डिग्रीज क्या क्या है? इसकी 1 डिग्री है, इसकी 2 डिग्री है, इसकी 3 डिग्री है। ये कैसा दिखता है? ये a नॉट प्लस a1x ऐसा दिखता है। और ये दिखता है a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। और ये कैसा दिखता है? a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। ओके, इसकी जीरोस कितनी है? इसकी एग्जैक्टली 1 जीरो होती है हमेशा। जीरोस का क्या मतलब है? कौन सी वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल जीरो बनेगा? इसकी जीरोस कितनी होगी? या तो नो जीरो या 1 जीरो या फिर 2 जीरोस। ओके, इसकी क्या होगी? या तो 1 जीरो होगी या 2 जीरोस होंगी या 3 जीरोस होंगी। अंडरस्टूड बेटा? ये चीज सबको क्लियर है? यस? Yes, ma'am. Yes. ओके बेटा। सो अब मैं आपको कुछ ग्राफ प्लॉट करके दे रही हूँ। आप मुझे बताओगे कि कितनी जीरोस हैं, जिससे मैं पूछूंगी। ये ग्राफ है बेटा। ओके, टेल मी। सबसे पहले आंचल, इसकी कितनी जीरोस है बेटा? हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस ग्राफ? जिसका भी ये ग्राफ है उसकी कितनी जीरोस है आंचल? आंचल बताइए बेटा। पहला जो मैंने रेड वाला बनाया है, ये वाला जो ग्राफ है, इसकी कितनी जीरोस हैं? कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बेटा ये? हाउ मेनी टाइम्स इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस? एनीबॉडी एल्स? आंचल बेटा कितनी बार ये इंटरसेक्ट कर रहा है? एक बार, है ना? एक्स एक्सिस ये होती है ना, दिस इज योर एक्स एक्सिस। So how many times it is intersecting x axis? Only once. So there is only 1 zero. One time. ठीक है बेटा? Okay. So next is Akhil. Akhil, tell me how many zeros are here? Akhil? Akhil, can you unmute बेटा? Okay. हर्षदीप, आप बेटा, okay. I think आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। हर्षदीप, आप लास्ट क्लास में भी थी बेटा। इसमें बताइए मुझे कितनी जीरोस है इसकी? कितनी बार कट कर रहा है बेटा? Okay, anybody? Akhil, Arjun? हाँ, 2 times. Yes, so there are 2 zeros. So it is intersecting x-axis twice. So there are 2 zeros. Okay, now Arjun, can you tell me beta? Arjun? Yes, ma'am. Okay, I am drawing a graph. Tell me how many zeros are for this graph. Ma'am, 3 times. Okay, so it is intersecting 3 times the x-axis. Therefore, it is having 3 zeros. Okay, next one is who is the next one? Gagan, can you tell me beta? How many zeros for this graph? Gagan Chaudhary? Ma'am, 1 time. Yes, very good. So it is just touching the x-axis. So only 1 zero, right? And then we have Ojas. Can you tell me beta, what are how many zeros for this graph? No zero. No zero, right? ये कैसा ग्राफ है कि आपका ऊपर चला गया, right? So can it be a cubic polynomial? Ojas, अगर इसका no zero है, can this be a graph of a cubic polynomial? Yes.
नो बेटा, क्यूबिक में मैंने क्या बताया है कि इसका एटलीस्ट 1 0 होएगा ही होएगा, है ना? ओके, सो अगर आपके ग्राफ में नो जीरो है तो दैट कैन नॉट बी अ ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट कैन ओनली बी अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। और फिर आगे, उससे आगे मैंने आपको 3 बताए हैं, लीनियर और क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। उसमें नो जीरो वाला केस सिर्फ क्वाड्रेटिक में है। गॉट इट बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओजस आपको, यस बेटा, गुड। ओजस आपको समझ में आया? इट कैन नॉट बी अ ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट हैज टू बी अ ग्राफ ऑफ इधर लीनियर, लीनियर तो है नहीं हमें दिख रहा है, या फिर क्वाड्रेटिक। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो हु इज लेफ्ट? संजना एंड सिमरदीप कौर। संजना, इसका बताइए बेटा, हाउ मेनी जीरोस? Ma'am, 1. 1, वेरी गुड। सिमरदीप कौर बेटा, एम आई ऑडिबल? सिमरदीप, Yes, ma'am. ओके बेटा, इसके बताइए हाउ मेनी जीरोस? आई एम जस्ट प्लॉटिंग अ ग्राफ। ओके, टेल मी हाउ मेनी जीरोस? एक तो ये रहा, Ma'am, 3. 3, yes, so 3 zeros. Okay students, so यहाँ पे Yes, हमने ma'am. today the summary is, आप लोगों का जो take away for today's lecture है बेटा, so that is what is a polynomial, what is degree of a polynomial, what is zero of a polynomial, what do you mean by linear polynomial, what do you mean by quadratic polynomial, and what do you mean by a cubic polynomial. Okay beta, so tomorrow we will have a class where we will try to relate zeros of a polynomial. We will learn how we compute the zeros of a polynomial. ठीक है बेटा? And how we relate zero of a polynomial with coefficient of the polynomial. एक चीज रहेगी, ये जो हमने लिखा है ना polynomial a0 a1x plus a2x square, ये जो आपकी a0 a1 and a2 है, इनको बोलते हैं coefficients of the polynomial. इनको क्या बोलते हैं? Coefficients of the polynomial. आज हमारा क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ डिस्टर्ब हो गया था तो क्लास थोड़ा सा लेट होगी बेटा, बट इट्स ओके, अब टेक्निकल प्रॉब्लम हमेशा आ सकती है। सो नाउ दिस मीटिंग, क्योंकि ये जूम पे है, तो इट विल एंड इन आई थिंक 7 or 8 मिनट। सो आई वांट टू हैव अ डिस्कशन बेटा। सो सबको समझ में आया? प्लीज टेल मी, क्योंकि इस क्लास का मेन मोटिव है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आप हमेशा मुझे बोल सकते हैं कि मैम स्लो पढ़ाइए या फास्ट, थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए। So from tomorrow I will also give you homeworks. Last time मैंने आंचल कोई होमवर्क दिया था बेटा? No, ma'am, मेरी ना मीटिंग लेफ्ट हो गई थी। ओके, कोई बात नहीं, कल से मैं आप लोगों को होमवर्क्स भी दूंगी। वी विल हैव वर्कशीट्स आल्सो, और ये वाला लेक्चर भी रिकॉर्डेड है। आई विल शेयर दिस लेक्चर आल्सो, सो दैट लेटर ऑन अगर आपने कुछ पॉइंट आपका किसी का मिस हो गया हो, यू कैन सी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, आप जैसे अगर आपका एनसीईआरटी है सबके पास, एवरीबडी फॉलोज एनसीईआरटी और वॉट एवर बुक यू फॉलो, राइट? आप उसमें से ये चैप्टर रीड कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो आस्क मी योर डाउट्स। we can plan doubt classes also. ठीक है बेटा? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेरा मेन मोटिवेशन है, दैट इज कि इफ यू हैव एनी डाउट्स लाइक कि मैम मुझे +1 में क्या लेना चाहिए, राइट? मुझे मैथ्स लेना चाहिए या मुझे साइंस लेना चाहिए, मुझे ये बनना है, क्योंकि मुझे याद है कि व्हेन आई वाज इन स्कूल तो आई हैड मेनी डाउट्स कि ये वाला सब्जेक्ट लूंगा तो what are the options for me, what are the career options for me। मान लो किसी ने साइंटिस्ट बनना है तो कैसे बने, कैसे हम कौन सा करियर पाथ चूज करें। ओके बेटा, so these discussions also we can have. So I have added you on the WhatsApp group. So इसका जो मेरा main motivation है बेटा, it is just that कि I know there are so many students who are afraid of mathematics. So मेरा only I have one single aim कि maths से आप लोगों को डर ना लगे, and I want you to like introduce to so many new technologies. जैसे आज मैंने आपको डेस्मोस बताया, तो आप उसको ट्राई करोगे कि उसमें ग्राफ्स कैसे प्लॉट होते हैं और क्या क्या ग्राफ्स हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है अखिल, अर्जुन बेटा, समझ में आ रहा है? ओजस? Yes, ma'am. फॉर Yes, एग्जाम्पल whenever you कोई भी चीज जब हम देखते हैं वो हमें ज्यादा याद रहती है ना। अगर मैंने अभी आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाया जिसमें एक्चुअली वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, तो व्हेन यू सी यू रिमेम्बर, राइट? सो दैट इज द आइडिया। तो देयर आर नाउ वी हैव टू कनेक्ट with our study so many technology। आपको टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करना चाहिए,
जो आजकल अवेलेबल है। सिर्फ हमें बुक से नहीं पढ़ना चाहिए, यू शुड कनेक्ट एवरीथिंग, यू शुड लाइक ट्राई टू सी कि जो ग्राफ है वो कैसा दिखता है, ये फिगर कैसा दिखता है, ठीक है। नाउ क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इन ओल्डन डेज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्लॉट, बट अब हमारे पास वी हैव सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी, वी कैन प्लॉट एंड वी कैन जस्ट सी कि चीजें कैसी दिखती हैं। Okay, so can I give you one homework problem? Yes, beta. So this is a homework for everybody. So in tomorrow's class, I will ask everybody. ठीक है? So beta homework ये है कि I have a polynomial a0 plus a1x plus a2x square. ठीक है? So I have this polynomial. किसी से नहीं होगा तो it is okay बेटा, कल मैं करवाऊंगी, but try करना. This is a given polynomial. ठीक है, और इसकी जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस। मान लो ये पॉलिनोमियल है, इसके अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस हैं। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a0 a1 a2 and alpha beta? These are coefficients of the polynomial and these are zeros of the polynomial. ठीक है बेटा, so this topic is how we relate zeros of a polynomial with the coefficients of the polynomial. क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर और 2 जीरोस दी हुई है अल्फा एंड बीटा। आपको मुझे बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड a0 a1 एंड a2। गॉट इट बेटा? यस, Okay, ma'am. सो इसका मैं एक हिंट दे रही हूं आप लोगों को। हिंट इज इफ x इज इक्वल टू a या फिर अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px, then x minus alpha is a factor of that polynomial. ये क्लियर है सबको? फैक्टर पता है सबको? Because if you have for a polynomial there is a zero, मतलब x is equal to alpha इसको जीरो बनाता है इस polynomial को। इसका मतलब इस polynomial के अंदर x minus alpha is a factor. So this is your homework. Okay बेटा? Fine students. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Tomorrow I will ask everybody. और बाकी सब लोग कैसा चल रहा है पढ़ाई? पढ़ रहे हो? लॉकडाउन में घर पे बैठे हो, स्टडी कर रहे हो बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody is studying? एक दो लोगों ने यस Yes. बोला है मुझे। Yes, ma'am. ओके, गुड स्टूडेंट। तो पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बट पढ़ने के लिए भी आपको वो देखना है कि कैसे हमने अच्छे ढंग से पढ़ना है। इट्स नॉट कि हमने सिर्फ अपने एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है, ठीक है? सो वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। आपको एक्साइटेड रहना है कि ओके आपने देखना है। आप लोग ये भी ढूंढ सकते हो कि मैंने आज पॉलिनोमियल के रूट्स जीरोस निकालने सीखे, तो रियल लाइफ में कहाँ यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है बेटा? व्हेन यू विल रिलेट दीज थिंग्स कि जो मैंने मैथ्स में सीखा है वो रियल लाइफ में कैसे यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपकी आगे भी अगर आप रिसर्च में जाओगे या कहीं और इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे, वहां भी ये चीजें हेल्पफुल है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। ओके बेटा, सो आई विल सी यू एवरीबडी टुमारो। यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स आल्सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, यू कैन ज्वाइन दीज क्लासेस। आप सिर्फ आपको गूगल फॉर्म भरना है बेटा, ठीक है? सो वी विल कंटिन्यू टुमारो एंड वील ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन two lectures and then we'll practice the questions. Have a nice day everybody. Okay beta, bye bye. Bye students. Bye, ma'am. Bye. Okay, have Bye, a nice ma'am. day everybody. Bye, Have a ma'am. nice Bye, day. ma'am. See you tomorrow. You can ask your doubts also.